Very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata from Layal Public School, and students, today we all are going to continue our chapter number 9 of from your history textbook. The name of the chapter is The Making of Regional Cultures. In our previous class, we discussed about paintings and we discussed about miniature painting. Okay, now today we will discuss about language, which is also a part of the culture. So, which is also a part of the culture, which is which comes under culture. Okay, a closer look, Bengal. The growth of a regional language. Regional, you all know region, a particular place is known as region, a particular territory is known as region. So regional language की growth जो है, evolution जो है वो हम देखते हैं. As we saw at the outset, we often tend to identify regions in terms of the language spoken by the people. So we assume that people in Bengal always spoke Bengali. However, what is interesting is that while Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit, early Sanskrit texts mid-first millennium BCE suggest that the people of Bengal did not speak Sanskritic languages. How then did the new language emerge? Now, if we saw at our surroundings and if we tend to identify regions and if we wanted to identify regions in terms of the language, we often recognize those places in terms of the language spoken by the people. The whatever language people spoke in that particular region, generally we consider those people as with their language. We consider them, we identify them with the language they speak. So अगर हम बंगाल को अज्यूम करते हैं तो हम नॉर्मली क्या अज्यूम करते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं. एंड बंगाली जो है कहाँ से डिराइव हुई है, संस्कृत से डिराइव हुई है. बट अगर हम अर्ली संस्कृत टेक्स्ट देखते हैं तो वो क्या बताते हैं कि जो लोग बंगाल के लोग वो पहले जो है संस्कृत वो पहले जो है सांस्कृतिक लैंग्वेजेस नहीं बोलते थे. तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो लैंग्वेज है, न्यू लैंग्वेज बंगाली लैंग्वेज है, वो एमर्ज कैसे हुई, ये कैसे आई. सो from the 4th-3rd centuries BCE, before Christ era की टर्म बात करते हैं, from the 4th-3rd centuries BCE, commercial ties began to develop between Bengal and Magध. जो साउथ बिहार और बंगाल की बात करते हैं तो वो डेवलप होने लग गए थे, which may have led to the growing influence of Sanskrit. During the 4th century, the Gupta rulers established political control over North Bengal and began to settle Brahmins in this area. Thus, the linguistic and cultural influence from the mid-Ganga valley became stronger. In the 7th century, the Chinese traveler Xuanzang observed that languages related to Sanskrit were in use all over Bengal. Now, अब 4th और 3rd century BCE, before Christ era की बात करते हैं तो हमने देखा कि कमर्शियली मतलब कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट पर्पस के लिए बंगाल और मगध जो है ट्रेडिंग पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए जो है दोनों ने अच्छे जो है रिलेशन मेंटेन किए और उनके रिलेशंस जो है डेवलप होने लग गए थे. अब आपस में ट्रेड करना है और आपस में बिजनेस करना है तो उनको कम्युनिकेट भी करना आना चाहिए ना. वो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? तो इस वजह से इन दोनों का जो डेवलपमेंट था वो संस्कृत से काफी इन्फ्लुएंस हुए. ये दोनों ही मगध और बंगाल, स्पेशली बंगाल. और 4th सेंचुरी में क्या हुआ था, गुप्ता रूलर्स जो थे उन्होंने धीरे धीरे नॉर्थ बंगाल में अपना पॉलिटिकल कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था और वहां पे ब्राह्मण्स भी जो है सेटल
होने लग गए थे। तो अब लिंग्विस्टिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और हमने अपने लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ा था हमने ट्रेडर्स के बारे में, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिमेज, जिसमें हमने ज़ुएनज़ैंग की बात की थी कि वो एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम था, ठीक है, कि वो एक जो ट्रैवलर था, जो हॉली प्लेसेस, जो सेक्रेड प्लेसेस हैं वहां पे वो ट्रैवल करता था। तो ज़ुएनज़ैंग ने ऑब्जर्व किया था कि ऑब्जर्व दैट लैंग्वेज रिलेटेड टू संस्कृत वर इन यूज ऑल ओवर बंगाल, कि संस्कृत से रिलेटेड जो लैंग्वेजेस है पूरे बंगाल में क्या हो रही है, बहुत ज्यादा यूज हो रही है। From the 8th century, Bengal became the center of a regional kingdom under the Palas. पलाश किंगडम जो था, अब हमने देखा 8th सेंचुरी में जो है बंगाल जो है एक रीजनल किंगडम बन गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था पलाश के अंडर। Between the 14th and 16th centuries, Bengal was ruled by sultans who were independent of the rulers in Delhi. हमने दिल्ली सल्तनत की बात की थी, ठीक है, जो मोहम्मद गौरी थे, उन्होंने जो है अपने गवर्नर्स को जो है डिवाइड कर दिया था, इंडिया को डिवाइड कर दिया था उनके बीच में। तो अब सुल्तान्स क्या कर रहे थे, बंगाल को इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे। In 1586, when Akbar conquered Bengal, it formed the nucleus of the Bengal Suba. While Persian was the language of administration, Bengali developed as a regional language. अब 1586 में अकबर ने बंगाल को कॉन्क्वेट कर लिया था, बंगाल को कैप्चर कर लिया था, और इसके बाद वहां पे जो है इट फॉर्म्ड द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सभा। उन्होंने क्या कर दिया था, बंगाल सभा को बना लिया था। सो अब पर्शियन जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी ऑफिशियल वर्क थे उसके लिए जो है पर्शियन यूज की जाती थी, बट रीजनली वहां के जो लोग थे वो बंगाली जो है वहां पे डेवलप हो रही थी, ठीक है। अब nucleus of the Bengal Sabha. What is the meaning of the nucleus of the Bengal Sabha? It means nucleus means सेंट्रल, ठीक है। तो ये जो जब अकबर ने बंगाल को कॉन्क्वेट कर लिया था ना, तो बंगाल सूबा जो है, सूबा का मतलब होता है, सूबा मीन्स यू कैन से कि एक बंगाल सूबा एक क्लॉक की तरह यूज किया जाता है इसको, ठीक है, क्लॉक की तरह यूज किया जाता है सुबह को। और उसमें इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि जो बंगाल है वो क्या है, हम एक सेंट्रल प्लेस है, ओके। तो उसके बाद उन्होंने पर्शियन को जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज माना, और बंगाल को जो है रीजनल लैंग्वेज, एज अ रीजनल लैंग्वेज बंगाली भी डेवलप होने लगी थी। In fact, by the 15th century, the Bengali group of dialects came to be united by a common literary language based on the spoken language of the western part of the region, now known as West Bengal. Thus, although Bengali is derived from Sanskrit, it passed through several stages of evolution. Also, a wide range of non-Sanskrit words derived from a variety of sources, including tribal languages, Persian and European languages, have become part of modern Bengali. Now, जो बंगाली ग्रुप्स ऑफ डायलेक्ट्स हैं, डायलेक्ट्स का मतलब क्या होता है, डायलेक्ट्स का मीनिंग होता है एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी सोशल ग्रुप के लिए, उसको हम बोलते हैं डायलेक्ट्स। तो एक बंगाली ग्रुप्स ऑफ डायलेक्ट्स जो है जिनके लिए बंगाली बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज मानी जाती थी, बंगाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी, उन्होंने क्या है यूनाइट होके एक कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज जो है, हम जो वेस्टर्न पार्ट में जो लैंग्वेज बोली जाती थी उसके बेसिस पे एक कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज जो है उन्होंने यूनाइट होके बनाई, और उसको जो आज हम प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल बोलते हैं ना, उस प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल, उस ऑब्वियसली उस टाइम पे बांग्लादेश जो है, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है वो उसका पार्ट था। तो वेस्ट बंगाल जो है
वेस्टर्न पार्ट जो था उसको क्या किया गया था, वहां पे उन्होंने उस लैंग्वेज को यूनाइट होके बना लिया। अब बंगाली जो है ऑब्वियसली संस्कृत से डिराइव हुई है, उसमें हम बहुत सारे स्टेजेस में देखते हैं कि उसमें इवोल्यूशन आया है, चेंजेस आया है। हम बहुत सारे नॉन संस्कृत वर्ड्स भी जो हैं बंगाली में देखते हैं कि यूज हुए हुए हैं। बहुत सारी जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, पर्शियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, वो प्रेजेंट डे मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज का क्या बन चुकी है, पार्ट बन चुकी है। अर्ली बंगाली लिटरेचर may be divided into two categories, one indebted to Sanskrit and the other indebted of it. The first includes translation of the Sanskrit epics, the Mangal Kavyas, which literally means auspicious poems dealing with local deities, and bhakti literature such as the biography of Chaitanya Deva, the leader of the Vaishnav Bhakti movement. नाउ अब जो अर्ली बंगाली लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक संस्कृत और दूसरा एक इंडिपेंडेंस, मतलब उसकी खुद की जो इंडिपेंडेंस है, खुद ही एक लैंग्वेज एमर्ज होके आई है। तो फर्स्ट में हमें क्या ट्रांसलेशंस देखने को मिलती है कि जितने भी संस्कृत एपिक्स हैं, जो संस्कृत की कथाएं हैं, संस्कृत के जो ग्रंथ हैं, उनके बारे में देखने को मिलता है। उसका एक एग्जाम्पल है मंगल काव्यास, जो बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही जो पवित्र, ऑस्पिशियस इज अ टर्म विच वी यूज फॉर प्योरिटी, ठीक है, और प्योरिटी और बहुत ही जो मतलब बोलते हैं ना मंगल काम हो, मतलब सब अच्छे अच्छे काम हो, तो बहुत ही ऑस्पिशियस पोम्स जो है उसमें उसका ट्रांसलेशन है, जिसमें जो भी लोकल डाइटीज थे, जो लोकल गॉड और गॉडेसेस थे, उनकी बात की गई है। और क्या बात की गई है, भक्ति लिटरेचर की बात की गई है, जैसे कि एक लिटरेचर, एक बायोग्राफी है चैतन्य देवा। चैतन्य देवा कौन थे, वैष्णव भक्ति मूवमेंट के वो लीडर थे, तो उसके बारे में बात की गई है। तो ये हमने अर्ली बंगाली लिटरेचर की बात की। नाउ द सेकंड इंक्लूड्स द नाथ लिटरेचर सच एज द सॉन्ग ऑफ मायनामती एंड गोपी चंद्रा, stories concerning the worship of Dharma Thakur and the fairy tales, folk tales and ballads. Now जो नाथ लिटरेचर है उसमें हम बहुत सारे सॉन्ग्स देखते हैं, मायनामती हो गया आपका, गोपी चंद्रा हो गया, और धर्मा ठाकुर जो वर्शिप है आपका, स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्मा ठाकुर की वर्शिप के लिए जो भी स्टोरीज है उनको देख लिया। फेयरी टेल्स, जो आपकी फेयरी टेल्स क्या होते हैं, जो आपकी कहानियां होती है ना, एंजल्स की जो स्टोरीज होती हैं, या फिर फोक टेल्स हो गए कि आपकी रीजन की खुद की कोई जो स्टोरी है, या फिर बैलेड्स हो गए। बैलेड्स क्या होता है, बैलेड्स का मतलब होता है बैलेड्स का मतलब होता है कोई भी पोम हो गया, ठीक है, कोई भी सॉन्ग हो गया है जो छोटे छोटे स्टैंजास में लिखे हुए होते हैं, तो उसको बोलते हैं। तो ये सेकंड जो नाथ लिटरेचर था वो इन सारी चीजों पे बेस्ड था। Now just look at this box, Mayanamati, Gopi Chandra and Dharma Thakur. The Naths were ascetics who engaged in a variety of yogic practices. This particular song, which was often enacted, described how Mayanamati, a queen, encouraged her son Gopi Chandra to adopt the path of asceticism in the face of a variety of obstacles. Dharma Thakur is a popular regional deity often worshipped in the form of a stone or a piece of wood. Now the Naths एक रूलिंग फैमिली के लिए वर्ड यूज किया गया, रूलिंग फैमिली है, तो वो एस्केटिक्स थे। एस्केटिक्स का मतलब क्या होता है, एस्केटिक्स का मतलब अगर हिंदी में लिटरली इसको ट्रांसलेट करूं तो इट मींस जो योगी होता है, तपस्वी होता है, उसको हम एस्केटिक बोलते हैं, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन एंड व्हिच इन लाइक
रिलीजियस रीजन के लिए आप जब अपने आप को सेल्फली बहुत डिवोटेड रहते हो, आप अपने आप को बहुत क्या बोलते हो डिसिप्लिन में रखते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम एस्केटिक बोलते हैं। ठीक है, तो मायनावती अपने सन गोपी चंद्रा को बहुत ज्यादा एनकरेज कर रही थी कि तुम एस्केटिज्म के पाथ को फॉलो करो, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आए। और धर्मा ठाकुर जो थे, धर्मा ठाकुर ने क्या था, धर्मा ठाकुर एक वहां के लोकल जो थे गॉड थे, जिसे स्टोन और पीस के और वुड के फॉर्म में जो है वर्शिप किया जाता था। The texts belonging to the first category are easier to date, as several manuscripts have been found indicating that they were composed between the late 15th and mid 18th century. Those belonging to the second century category circulated orally and cannot be precisely dated. They were particularly popular in Eastern Bengal, where the influence of Brahmins was relatively weak. जो first text थी, first category थी बेटा, उनके तो हमें काफी मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह देखने को मिले हैं, बट जो ये नाथ है, सेकेंड कैटेगरी जो है हमारे नाथ लिटरेचर की, इस वो ओरली ही हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और ईस्टर्न बंगाल में काफी पॉपुलर है, और इनका जो ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस है वो काफी वीक है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट पीर्स एंड temples. Okay, so thank you so much class for joining the class. Bye bye, take care.